Tamasiki. That's all I know. It is absolutely wonderful to be with you today. We are not in the entertainment business. There are many radio stations that are out there that are playing music and entertaining people. We are not part of the entertainment business. We are part of the God's business that changes people's lives. Okay? And we need your help. If you don't give your help, people's lives will not be changed. Again, if you visited CBC The Voice Asia, it is non-stop telephone calls from people in India and Pakistan who need help. They need somebody who will come alongside them and will talk to them and be with them, and if possible, email them, text them, write letters to them. You are the people that God has chosen to do this. Don recently spent 13 years in Zambia, in Angola, in Mozambique, telling people about Jesus. Now, do you want to just share that little word you gave me about the youth? Yes, come on. Good afternoon. It's great and an honour to be with you this afternoon. And I am so delighted when I saw the young people up here. It really does something to me to see them loving Jesus and going on for Him. But as senior people, I've got something for you. You know, they have got the life and the fire. But God says to us, we do not retire, we refire in the name of Jesus. And we can encourage the youth and the young people, but we have a part to play. Don't get old in like this world and put you one side. You keep going on for God and refire and turn this country and the world upside down for Jesus. Amen. Give Harry Das a big round of applause. And we ask Terry to come and just present him with the Presenter of the Year award. He is a great guy, honestly, he really is. Presenter of the Year award. And now I'm going to introduce you to my team, but just keep your eyes on the screens because we just want to play this DVD. It's a wonderful, wonderful DVD. It's titled Super Radio Heroes. They thought the world was safe. They thought that nothing would go wrong. They thought that everything was dandy. Until the most evil of supervillains appeared. Having been cast out of heaven, he directed his anger to hurt those who God loved the most. Satan declared war on mankind. Who would rescue the world from mass destruction? Who would save the masses from impending doom? There were a few who would fight, a few who would take up the challenge. They became known as the Super Radio Heroes. Faster than a speeding turtle. Able to leap tall buildings with a single bound. X-ray vision with the ability to see through walls. Super hearing. Hear voices from miles away. Speed speaking ability. Able to consume more samosas
than the average elephant. Able to fly. Able to stop bullets with their bare hands. Extreme strength. But most importantly, able to employ the greatest superpower. Jesus Christ. So using the superpowers at their disposal, they transmit the super powerful message of Jesus Christ to the nations. Amazingly, the superpower that Jesus is offering is being freely transferred to many people around the world. The Super Radio Heroes have experienced many superpower miracles, and the extraordinary superpower of Jesus Christ is really impacting the nations of India and Pakistan. And so the Super Radio Heroes continue to use their superpowers to help others. Super speaking, super hearing, super vision, super white guys, super prayer, super music, super DIY skills. If you need any electrical work in your department, you know who to call. Look at this. And much more. But each one of them would ask you this: do you have the power? The power of Jesus is freely available to you. He is far above all principality and power and might and dominion and every name that is named, not only in this world, but also in that which is to come. And God has put all things under his feet and gave him to be the head over all things to the church. And as Jesus himself said, all authority in heaven and on earth has been given to me. Therefore go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, and teach them to obey everything I have commanded you. And without doubt, I am with you always, to the very end of the age. Jesus has the power. Ladies and gentlemen, by your bano, that I am one of the most happiest men in this world. I have a brilliant team, I really do, and I'm so proud of them. And the amount of work that they do, honestly, the amount of work, if only you were there, you would realize. They work so hard. They're blessed people, they're serving the nations of India and Pakistan with the gospel. We've got 3 services, 3 shifts, day and night. The station is manned. And now, God has blessed us that we're going to go into your homes as well. We're going to be in the UK, in the Europe, and we're going to be blessing people that don't know Christ. We're going to be introducing them to the biggest power in the world, and that is the power of Jesus Christ. You can risk an amen to that. You can give him a round of applause. So I want you to look at these guys. These are superheroes. And I want you to pray for them. I want you to bless them. And I want you to just say, balle balle for them, all right? Shabba shabba, yeah? Amen?
a round of applause for my team, please. खुदा ने बनाया ज़मीन आसमान, दिन रात, चांद सूरज और सितारे, और फिर बनाया इंसान, आपको और हमें, और हमसे बना परिवार, और हर परिवार की अपनी एक कहानी। कभी खुशी कभी गम, यही है जिंदगानी। ऐसे ही परिवार की है ये एक कहानी। शुक्र है मेरे खुदाया, थैंक यू जीसस। आपने मुझे सब कुछ दिया है, घर, पैसा, नाम, नौकर, चाकर, सब कुछ। और ये मेरी प्यारी पत्नी, और ये 2 खूबसूरत बच्चे। और मुझे क्या चाहिए मेरे खुदा? मैं आपका शुक्र करता हूं। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने। हमारे पास किसी चीज की कमी नहीं। खुदावन ने हमें सब कुछ दिया है, और सबसे बड़ी दौलत तो हमारे ये 2 बच्चे हैं, एक आशीष और दूसरा जॉश। आशीष जो हर वक्त हमारी सेवा में लगा रहता है, और जॉश, और ये जॉश कहीं नजर नहीं आ रहा आज। रामू काका, रामू काका, रामू आ रहा हूं मैं, सब आ रहा हूं। मम्मी मम्मी मम्मी, मेरी प्यारी सी मम्मी, आपको तो हमेशा जोश की ही पड़ी रहती है। आपका बड़ा बेटा भी तो घर में रहता है। चलो छोड़ो मेरी बात। और हाँ पापा जी, मैंने दुकान का सारा काम कर दिया है, और यहाँ तक कि नई डिलीवरी भी रिसीव कर लिया, उनकी पेमेंट भी कर दी है। और सुबह ऑफिस में मैं जाकर सभी वर्कर्स की पे भी दे दूंगा। और हाँ, आप दोनों बस आराम कीजिए, आप किसी भी चीज की फिक्र मत कीजिए, मैं हूँ ना। हाँ बेटा, तुम हो तभी तो मैं किसी बात की चिंता नहीं करता, और मेरा सारा बोझ तो तुमने अपने कांधों पे ले लिया है। काश ये बातें तुम्हारा छोटा भाई जोश भी समझ सकता। अजी छोड़िए जी, आप तो हमेशा मेरे लाडले के पीछे पड़े रहते हैं। वो जहाँ भी होगा कोई अच्छा काम कर रहा होगा, और देखना एक दिन हमारा नाम रोशन करेगा। एक तो तुम्हारे लाड प्यार ने से बिगाड़ दिया है। अब बताओ कहाँ है जोश, किधर है? मैं जोश, और आज
इस पार्टी का सारा बिल मैं दूंगा। लो कर लो बात, पार्टी का बिल मैं दूंगा। इतने सारे पैसे आएंगे कहाँ से? जेब में फूटी कौड़ी नहीं है और चले हैं जनाब पार्टी देने। ए, जहां तक पैसों की बात है वो मैं ला सकता हूं। शायद तुम्हें नहीं पता, मेरा बाप बहुत अमीर है। अगर तुम्हारा बाप इतना अमीर है तो जनाब पिछली पार्टी के पैसे अभी तक बाकी हैं। अमीर बाप का गरीब बेटा। अमीर बेटा कहे या भिखारी। अरे जा जा रे जा, पहले तो अपने बाप से भीख तो मांग ले, फिर पार्टी करना। मैं भिखारी नहीं हूं। मैं दिखा दूंगा, मैं सबको दिखा दूंगा कि मैं भिखारी नहीं हूं। मैं पैसा लूंगा, भीख से नहीं, हक से लूंगा, जो मेरा हक बनता है। आज 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 ही की रात मैं अपने बाप से अपना हक लूंगा। डैड, डैड। हाँ बेटा, सुन लिया, आ रहा हूं मैं। बोल, क्या बात है? आज मैंने आपसे एक बात करनी है डैड। हाँ हाँ बोलो, क्या बात करनी है? डैडी, मुझे पैसे चाहिए। पैसे? हाँ ठीक है, दे दूंगा पैसे। किस बात के लिए? डैडी, मुझे पैसे चाहिए। लेकिन फिर भी बेटा, किस लिए चाहिए इतने पैसे? डैडी, मुझे पैसे चाहिए। बेटा लेकिन वो... बस डैडी बस, मैं आपके सवालों का जवाब देने नहीं, अपना हक लेने आया हूँ। हक? क्या बात कर रहे हो? कैसा हक? कौन सा हक? तुम होश में तो हो? ये कोई तरीका है अपने बाप से बात करने का? प्रताप बहादुर, अब तो मुझे अपना हक चाहिए, वो भी आज, अभी, इसी वक्त। जोश, तेरी हिम्मत कैसे हुई पिताजी का नाम लेने की? भैया आप बीच में ना आए। बस 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 करो, बस करो। पैसों के लिए तुम आपस में लड़ रहे हो, रोको इन्हें। बस बस। मेरे होते हुए इस घर में कभी लड़ाई नहीं होगी। आज तक इस घर के सारे फैसले मैं करता आया हूं, और जब तक जिंदा रहूंगा फैसले मैं ही करूंगा। तुम्हें पैसे चाहिए ना? पैसे चाहिए ना? आशीष, जाओ इसके पैसे लाकर इसे दे दो। लेकिन पिताजी, बस, इसके पैसे इसे लाकर दे दो। ये मेरे घर को क्या हो रहा है? रोको, आप इसे रोकते क्यों नहीं? रोको इसे। बेटा, एक बार फिर सोच ले, तूने जो फैसला किया है वो ठीक नहीं है। ये घर, ये पैसा, ये सब कुछ, ये तेरा ही तो है। कहां जाएगा? कहां जाएगा इस दुनिया की भीड़ में? ये दुनिया वाले तुझे जीने नहीं देंगे बेटा। मत जा मेरे बेटे, मत जा, अभी भी समय है, सोच ले। बेटा, बेटा, ना जा। दुनिया की भीड़ में क्यों खो रहा? मिलेगा कुछ भी न फल जो बो रहा। तू आजा घर लौट आ बेटे, घर लौट आ।
दोस्तों, ये देखो मैं आ गया, और इस बार मैं खाली हाथ नहीं, पैसे लेकर आया हूं। तुम कहते थे ना मैं भिखारी हूं, पैसा नहीं, मैं अपना हक ले आया। ये रहा पैसा, ये रहा। और तुम कह रही थी ना, है? तुम कह रही थी ना मेरे पास पैसे नहीं, ये रहे पैसे। अब बोलो कितना पैसा चाहिए? 1000, 2000, 10,000? मैं तुम्हें बिल दूंगा, और तुम्हारा, और हाँ, तुम्हारे पैसे भी मैं दूंगा। करो पार्टी, और अब पैसा मैं दूंगा। मैं दूंगा। और इस तरह जोश ने अपना सारा पैसा उड़ा दिया। दिन, हफ्ते, महीने गुजर गए, और अब आइए, रुखसाना की महफिल में आप सबको सलाम। इन आंखों को तो इंतजार रहता है, बस आप जैसे दीवानों का अर्ज किया है। भीगी हुई आंखों का ये मंजर ना मिलेगा। घर छोड़ के मत जाओ कहीं, घर ना मिलेगा। तेरी याद बहुत आएगी, जुल्फों की घनी शाम, जब धूप में साया कोई सर पे न मिलेगा। आंसू को कभी ओस का कतरा ना समझना, ऐसा तुम्हें चाहत का समंदर ना मिलेगा। इस ख्वाब के माहौल में भी ख्वाब है अनकहे, जब नींद बहुत आएगी तो बिस्तर ना मिलेगा। ये सोच लो अब आखिरी साया है मोहब्बत, इस दर से उठोगे तो कोई दर ना मिलेगा। कजरा रे तेरे कारे कारे नैना, कजरा रे तेरे कारे कारे नैना, ओ कजरा रे तेरे कारे कारे नैना, कजरा रे तेरे कारे कारे नैना। हो मेरे नैना जुड़वा नैना, ओ कजरा रे तेरे कारे कारे नैना। अरे करीम अकरम, आज सुबह सुबह महफिल में ये कौन है? कौन यहाँ पड़ा है? अरे रुखसाना जी है, वही है जो पिछले 3 महीने से आ रहा है, और सारा पैसा तो आपके दर पे लौटा दिया। पड़ा है बेचारा, क्या करें। अरे क्या तुमने इन्हें रुखसाना की महफिल का असूल नहीं बताया? रुखसाना के यहाँ जिनकी जेब भरी उनकी महफिल हरी। अरे मुस्ताक, करीम, जाइए इन्हें बाहर का रास्ता दिखा दीजिए। अब रुखसाना की महफिल में इनके लिए कोई जगह नहीं है। ओहो, हाँ यार, हाँ। एक तो सेब मेरा चकरार। हाँ भाई, क्या बात, जा रहा हूँ यार। अरे भाई धक्के क्यों मार रहे हो? जा रहा हूँ मैं। हाँ, पैसे, हाँ पैसे नहीं, मैं ले आऊँगा। छोड़ो मुझे, ज़बरदस्ती ना करो, मैं ले आऊँगा पैसे मैं ले आऊँगा। जा रहा हूँ यार, मुझे धक्के ना मारो, मैं जा रहा हूँ, ले आऊँगा पैसे, करूँगा काम।
कुछ करूंगा, ले आऊंगा। एक वक्त था जब जोश के पास पैसा था और सारा पैसा उसने ऐशो आराम में उड़ा दिया। अब उसकी हालत ऐसी है कि 2 वक्त की रोटी भी उसे खाने को नहीं मिलती। अरे मेरी हालत क्या हो गई? भूख लगी है, तीन दिन से रोटी नहीं खाई। कोई है, मुझे रोटी दे दो। रोटी, भाई साहब आप मुझे रोटी चाहिए। थोड़े पैसे दे दो, मैं रोटी खा लूंगा। अरे पीछे कैसे चले आते भिखारी उठकर? अरे कोई रोटी, मैं क्या करूं? वो कूड़े का डब्बे में से मैं देखता हूँ क्या है। यहाँ पर होगा रोटी का डब्बा। यहाँ से खा लूंगा मैं रोटी। ये क्या? अरे ये तो रेडियो है। हाँ, मैं रेडियो में इसे बेच दूंगा। मैं बेच के मैं रोटी खाऊंगा। इसे बेच दूंगा मैं। परमेश्वर का कलाम सुने। खुदा कहता है, एक खुदा को मानना, सिर्फ उसी की बंदगी और उसी को सजदा करना। जो मुझसे प्रेम रखते हैं, मेरे हुक्मों को मानते हैं। तू अपने परमेश्वर का नाम बेफायदा ना लेना, तू जना न करना, तू अपने माता पिता का आदर करना, तो तू बहुत दिन तक जीवित रहेगा। तू अपने माता पिता का आदर कर। मैंने पैसों के खातिर अपना घर बाप भाई सबको छोड़ दिया, और जिनके लिए छोड़ा आज मेरे पास कुछ नहीं तो उन्होंने मुझे छोड़ दिया। मेरा डैडी मेरे डैडी मुझे माफ कर देगा क्या? नहीं, मैं नहीं जाता। नहीं जाऊंगा। कोई बात नहीं, वो माफ करे या ना करे, मैं माफी मांगने जरूर जाऊंगा। माँ, मैं अपनी माँ के पास चला जाऊंगा, अपने डैडी के पास चला जाऊंगा। मैं आ रहा हूँ डैडी, मैं आ रहा हूँ डैडी, मैं आ रहा हूँ। तू आजा घर लौट आ बेटे घर लौट मालिक, बड़ी बीबी जी, बड़े सरकार, वो आगे, सरकार वो आगे। अरे रामू काका, थोड़ा सांस तो ले लो, इतना सांस चढ़ा हुआ है, क्या बात है? अरे बेबी जी, वो सरकार आ गए। अरे कौन से सरकार आ गए? अरे बेबी जी, छोटे सरकार आ गए। आ गया मेरा बेटा आ गया। पुष्पा, आशीष, आ गया मेरा बेटा आ गया।
घर को सजा दो, दावतें दे दो, सबको दुल्हन की तरह सजा दो मेरे घर को। मेरा बेटा लौट आया है, मैं अपनी कीमती अंगूठी से पहनाने जा रहा हूँ। जल्दी बुलाओ सबको। मेरा बेटा जो खो गया था लौट आया है। ये तो थी इस परिवार की कहानी। कहते हैं हर कहानी के अंत में सब कुछ ठीक हो जाता है, और अगर सब कुछ ठीक ना हो तो समझ लीजिएगा कि अभी अंत बाकी है। इस परिवार का बेटा तो समझ गया और वापस आ गया, लेकिन हमारे परिवार के कुछ ऐसे बेटे और बेटियां हैं जो अभी तक नहीं समझे, और परमेश्वर उन्हें बुला रहा है। ए बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। Come on, we can do better than that. They put a lot of work into that. I think a standing ovation would be okay. Come on, stand up for a moment and just show your appreciation. That was really amazing. Okay, guys, thank you very much. Please be seated for a moment, and I just